नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and in case you haven't subscribed to this channel, please do so. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। प्रदीप जी। And you need to click to that icon subscribe. When you subscribe to when you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. तो प्रदीप जी अभी अभी खबर आई है, ये दिस इज ऑफ कोर्स ब्रेकिंग न्यूज, नाउ एवरीबॉडी इज गॉट इट। इसके पहले 2 घंटे पहले तक, 3 घंटे पहले तक किसी को मालूम नहीं था ये। मैं अभी आपको बता देता हूँ, हर एक कोई इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ इज इट दैट द अमेरिकन्स वर एबल टू कंडक्ट अ 20-minute ऑपरेशन एंड जस्ट गेट मेडुरो एंड हिज वाइफ आउट ऑफ Caracas. You know what? The US forces took the template of Operation Sindoor. I'm not joking. This is absolutely true, by the way. And this is an exclusive that you are hearing right over here for the first time. But now everybody else is talking about it. इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं कर रहा था, अभी लोग बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तानी रेडार को जैम कर दिया, और उनके पास जो 2 थोड़े बहुत अलग अलग रेडार जो थे उनका खात्मा कर दिया, all communications came to an end. The US forces did exactly that. Incidentally, do you know why? Because Venezuela had the same Chinese-made radar as the Pakistanis. चाइना का माल ऐसे ही होता है साहब, मैं आपको फिर बोलता हूँ, काम नहीं करता है। उनका जो PL-18 जो PL-187 मिसाइल जो था, वो पाकिस्तानियों ने फायर किया और हमारे बटाला के पास वहां पे आके गिर गया सामने खेतों में। प्रदीप जी, we have the full missile, yes. And now we can do reverse engineering on the same to know exactly what to expect. But this is so funny. I'm not joking. The Chinese made radar, state of the art, we are the best, we are this. And by the way, there are a lot of people over here in India who really keep praising the Chinese. God knows why. I am really telling you, the US forces, and this by the way was revealed by an ex-Delta Force commander. He said that we saw what the Indians had done to the Chinese radar and electronic countermeasure systems, ECMs, that the Pakistanis have got, and we realized they're the same systems that Venezuela has got, and we did exactly the same thing. So that's it. But they have done it, but world over, there is total condemnation of what the US did. You can't enter this country and take this president captive, capture him and take him back to your country and set him on trial. And then you boast that you got the entire oil reserves of Venezuela at your command, and you're going to set businesses there. I don't think it's going to be so easy as Trump says that you go into another country by force, try to take over the oil, total oil from there, and the refineries, you're going to set up business in refineries without local support. It's not going to be happen. It never happened. But if it happens, Pradeep ji, very good for us. We'll get our $1 billion back. ONGC is owed $1 billion by the Venezuelan government. 20 साल पहले, because there is one particular oil field which is being worked upon jointly with the Venezuelan government and and ONGC. ONGC, our Oil and Natural Gas Corporation, is owed $1 billion. तो उम्मीद ये है कि अगर अमेरिकन कंपनी वहां पर आ जाएंगी तो शायद हमारे पैसे मिल जाएंगे हमको, और थोड़ा बहुत ऑयल भी आ जाएगा, and there will be an oil glut in the market from Venezuela. But I think India should have given its voice in this kind of circumstances, because this kind of aggression anywhere is not good for democracy. देखिए साहब, ऐसा है, let's go straight to our guest. We'll talk a little bit more about that. Let's go to our guest. I think we've got a couple of very, very important guests indeed right now with us. Can we go to our guest, please? Right, we've got Mr. Ambekar after a long time. Vinayak Ambekar Saab, namaskar. Namaskar, sir. Jai Siya Ram, Jai Siya Ram. How are you? And Sanjay Dwivedi Saab, the evergreen Sanjay Dwivedi Saab.
of the Uddhav Sena from Lucknow. Amazing, amazing, absolutely. वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, Jai Hind, Vande Mataram. I love the Jai way. श्री राम, Jai Shri Ram. I love the way everybody is saying Vande Mataram these days. Absolutely हर fantastic. हर महादेव। Yeah, देखो, हर हर महादेव. चलिए, first class. हर हर महादेव। Vinayak Ambekar Sahab, as you might have heard, I don't know whether you heard it or not, in my opening statement what I said, the Americans actually copied the playbook used by the Indian armed forces, the manner in which we were able to jam all Chinese made radar in Pakistan, and they used it in Venezuela. Sir, China ka maal aise hi hota hai. But that's a separate issue. If you would like to comment on that, certainly. However, very good news indeed. As far as India is concerned, I would like to begin with that, and I would like your comments on it. This is the latest which has come out. Indian exports till November, from April to November, are at $562.13 billion, which is a jump of almost 7.5% as compared to last year. Our exports to the United States, exports to the US are up by 11.38%. 11.38%, sir. To China, exports are up, exports. Not the overall trade that we have with China. Deficit still remains. But our exports to China are up by 32.8%. Spanish exports have risen by 54.4%, 54.54%. UAE exports increased by 6.74%, and Indian exports to Hong Kong have gone up by 22.37%. And this is in spite of Mr. Trump's tariffs. तो मतलब मोदी जी और उनकी पूरी टीम ने जो प्लान किया वो जबरदस्त है सर. लेट्स बी वेरी क्लियर. लोग जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, कुछ भी कह लें, फैक्ट रिमेन्स, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर सीइंग सच अ ह्यूज जंप ऑफ एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स. अंबेकर साहब आप बताएं सर, बोलिए ये क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत का परिणाम है सर, बेसिकली. और जो प्लानिंग मोदी जी ने किया था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसके फल अभी मिल रहे हैं. वो प्लानिंग प्रैक्टिकल में आ रहा है, और उसके वजह से ये सब जो फिगर्स आ रही है आपने जो दिया ये आएगी. और मोदी जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ ट्रम्प कोई भी बात करेगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने ट्रेड को, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने का काम मोदी जी जो कर रहे थे, इसके ये जो परिणाम है वो अपने सामने आ रहे. प्रदीप जी. अंबेडकर साहब, कल मोदी साहब ने 1000 years ऑफ सोमनाथ डिस्ट्रक्शन बोले. दिस इज अ टाइम टू सेलिब्रेट, रिमूव अस फ्रॉम द स्लेवरी माइंडसेट. स्लेवरी माइंडसेट से निकाल कर एक नए जो विकसित भारत के राह उस पर चलना. Now how do you see that comparison? Because बहुत लोग कहने लगे कि आपने जानबूझकर उस दिन में कहा जब उमर खालिद and the other guy didn't get the bail, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिला. तो क्या है ये how do you see one मोदी साहब सोमनाथ जो 1000 year celebration के बारे में and accusation that खालिद उमर को बेल जानबूझकर अंदर रखे? कोई संबंध नहीं है दोनों का. मोदी जी हमारे विरासत के बारे में, विरासत भी विकास भी ऐसा दोनों बात करते रहते हैं. मोदी जी का वो मिशन जो है वो संघ के मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम आत्मबोध कहते हैं. आत्मबोध माने कि जो अपनी विरासत है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपना कल्चर है, उसके बारे में जानते रहना. तो एक सोमनाथ के बारे में उन्होंने जो बात की, ये अपने विरासत को जानने के लिए और या विरासत को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए की है. उसका उमर खालिद से कुछ संबंध नहीं है. वो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जो बहुत अच्छा डिसीजन है, और भारतीय जो भारत में जो घटनाएं होती है उसको एक अच्छी दिशा देने वाला डिसीजन है. जो हम बोल रहे थे कि उनका जो काम है वो देश के विरोध में है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है और कुछ नहीं है. उसका और मोदी जी के बात का कोई संबंध लगाना गलत है. बट राम रहीम को जिस प्रकार से बार बार पेरोल, 15 पेरोल, अंबेडकर साहब,
या जितने ऑपोजिशन है क्रिटिक्स ऑफ मोदी साहब से, ये जस्टिस इस प्रकार से नहीं होता कि एक जो आपके साथ है उनको लगातार पेरोल मिले और 5 साल से उमर खालिद और शर्जील इमाम अंदर है विदाउट ट्रायल. दे सी डिफरेंशिएशन. क्या जस्टिस अलग अलग है फॉर मोदी जी's फ्रेंड्स एंड मोदी जी's ओपोनेंट्स? अबेकर साहब. डेफिनेटली नॉट. ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है. मोदी जी कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं देते हैं. और बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्यों बेल नहीं दिया है और उनके जो कारनामे है उस कारनामे को उन्होंने उजागर किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में. सो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकिंग ऑर्डर दिया है. ऐसा कोई डेड ऑर्डर दिया नहीं है कि ऐसा ही कोई ब्लैंकेट ऑर्डर दिया नहीं है. इट्स ए स्पीकिंग ऑर्डर जो देश में, इस देश में अच्छी तरह से देश की लॉ को जानते हैं. उनको बहुत खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है. लेकिन यहाँ पर एक चीज तो है सर, 2 चीजें यहाँ पर बनती हैं. 1026 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था 1026 में. तो जैसा मोदी जी ने कहा, भाई महमूद गजनी अभी कहाँ है, उसके डिसेंडेंट अभी कहाँ हैं, कोई नाम निशान नहीं है. आप गजनी जाकर के देख लीजिए, पता नहीं आप गए कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है. अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह है सर. मतलब the worst city in India is better than that. Let me tell you this very frankly. The worst town in India. तो आज घोरी गजनी सब खत्म हो गए, हम लोग अभी यहीं पर हैं और सोमनाथ मंदिर का परचम अभी भी लहरा रहा है, सबके सामने है. ये मानना पड़ेगा. दूसरी चीज जो अभी प्रदीप जी ने पूछा, भाई उमर खालिद के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट दैट्स अ सेपरेट इशू एंड इट वाज स्टुपिडिटी ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंस टीम ऑफ उमर खालिद टू tag his case along with people, with the gentleman we are seeing on screen right now. That gentleman is a chap called Sharjeel Imam. No, is that Sharjeel Imam or is that Umar Khalid? I'm not sure. I think it's Sharjeel Imam. Sharjeel Imam वो शख्सियत है जिसने कहा था कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हम बंद कर देंगे, फौज नहीं जा पाएगी. वीडियो है सर उसका. नॉर्थ ईस्ट को वील कट इट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. और साथ में यह भी कहा कि 500 शहर ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, उन सबको सड़क पे आना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं. एंड नॉट जस्ट सैटिस्फाइड विद दैट, व्हाट डज ही से? ही सेज दैट इवन दोज नॉन मुस्लिम्स, जो गैर मुसलमान हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुसलमान बनना पड़ेगा, अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा अगर वो हमारा भरोसा चाहते हैं. ये शर्जील इमाम साहब ने कहा है. तो आई थिंक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट बेल? This is very strange, even though very frankly, in my opinion, his trial should start quickly. The trial should start. That's what I think. Would you like to comment on that, sir? सर ट्रायल होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा. जो अपना लीगल प्रोसीजर है उसमें जो थोड़ा विलंब होता है वो हर केस में होता है, कोई अकेले केस में नहीं होता है. मगर ट्रायल उसका डेफिनेटली स्टार्ट होगा और वो ट्रायल देश के हित के बाजू में होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. लेकिन जहां तक के जो मोदी जी ने कहा 1026 में महमूद गजनी ने आकर के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और उसको आकर के हम लोगों ने फिर बना दिया. मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर के एम मुंशी, सरदार पटेल साहब. तो I think that's a great thing, very frankly speaking. That's a very inspiring thing. Don't you think so? I think it's very inspiring what Modi ji said. What would you say, sir? यस डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. और आज की जो नई पीढ़ी है उनके लिए, जो जेन जी जिसको बोलते हैं, उनके लिए मोदी जी हमेशा ये बात कहते रहते हैं क्योंकि उनके सामने ये बातें सब उजागर हो, उसके लिए उनका प्रयास रहता है. फैंटास्टिक. यू नो द्विवेदी साहब, आपका सहानुभूति उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ कैसे रह सकते हैं? 53 लोगों को मार डाला था दिल्ली रॉयल्स में. 53 पीपल किल्ड, 700 इंजर्ड वेरी सीरियसली. और जो सीएए का छोटा सा एक विद्रोह था उसको पूरा एक रॉयट की तरफ घुमा दिया है बाय व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया कि दोनों शर्जील इमाम और खालिद उमर इस चीज को लीड कर रहे थे. दे वर द मास्टरमाइंड्स. इनके साथ लोगों का ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का सहानुभूति कैसे हो सकता है? दोनों मास्टरमाइंड है. And the prima facie evidence जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा against both खालिद उमर and शर्जील इमाम, वो बोले you cannot grant bail. किसी हालत में बेल नहीं मिलेगा. द्विवेदी साहब, संजय द्विवेदी जी, यूबीटी.
Dwivedi ji, engineering, are we getting Dwivedi on the line? राष्ट्र विरोधी ताकतों का इस देश में कोई काम नहीं है। जी राष्ट्र विरोधी ताकतें कोई भी हों, किसी जाति की हों, कहीं से भी हों, उसका इस देश में कोई नहीं है। हमारा 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 हमारा संविधान बना और हम बड़े आराम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते हुए यहाँ पे रह रहे हैं। और हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हमारा सनातन धर्म था, या हमारा हिंदू धर्म है, या सिख धर्म हो, या मुस्लिम धर्म हो, हम सब चाहे हमारा इससे पहले जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो बहुत से हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हिंदू भाई, तमाम जातियों के लोग जो युद्ध में लड़े और उन्होंने इस देश को आजाद किया। तो निश्चित है उसमें अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुधरना चाहते हैं, ना सुधरेंगे वो, उसके लिए हमारी कोर्टें बनी हुई है, जिला सत्र न्यायालय बना हुआ है, हाई कोर्ट बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, पुलिस बनी हुई है। पुलिस की जिम्मेदारी ये बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वो अपनी जो करती है, कार्रवाई करती है, या वो उन पे आरोप लगाती है, वो कहाँ तक कितना पक्षपूर्ण नहीं है, पक्षपातपूर्ण नहीं है। अगर वो पक्षपातपूर्ण नहीं है, उस पर आकलन करती है जिला सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती है। उनका फैसला हमको मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह दिया हो। तो आज की डेट में चाहे हमारे जो दुश्मन हैं, इस देश के जो दुश्मन हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात, किसी धर्म के हो, उनके साथ शायद इस देश से किसी भी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाहे पक्ष विपक्ष की बात हो तब होगी जब ये देश होगा। अगर ये देश इन मंसूबों से, जो ये मंसूबे बना के आतंकवादी आ रहे हैं इस देश में, जो पाकिस्तान से आतंकवाद 1947 चला, 3 लड़ाइयां हमने लड़ी और बांग्लादेश को अलग कराया। आज बांग्लादेश के संग हमारे हिंदू भाई को संघार कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो बड़ा दुखद विषय है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि इस पे उनको आपत्ति डालनी चाहिए, आपत्ति रखनी चाहिए, और इस तरह कोई कृत्य बांग्लादेश में ना हो या किसी भी देश में ना हो, विश्व में कहीं पे भी ऐसा कृत्य ना हो कि हमारे हिंदू भाइयों को कोई भी दिक्कतें आए। हम समस्या ये यहाँ पे आती है कि देश में अगर हम साथ साथ रह रहे हैं, तो इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें जो हमारे पुलिस विभाग है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है कि साहब वो फला व्यक्ति वहां रह रहा है और उसकी जो स्थिति है वो संदिग्ध है, तो मैंने काफी बार देखा है कि पुलिस उन व्यक्तियों को परेशान करती है। अगर हम इस देश में इस तंत्र प्रणाली को इतना सुरक्षित कर दें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कहने कुछ भी आए, तो जैसे हमारे यहाँ बनते हैं उनके जासूस अपने बनाते हैं पुलिस वाले, उससे उनको ट्रीट किया जाए और उनकी उनकी इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट दी जाए। उस इंफॉर्मेशन से उस व्यक्ति का नाम न लेते हुए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूँ शायद इस देश में जो हमारी जो आतंकवादी घटनाएं घट रही है इस देश में, उस पर निश्चित रूप से विराम लगेगा। क्योंकि देखिए कहीं हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती, हर जगह मिलिट्री नहीं पहुंच सकती, हर मोहल्ले में ना मिलिट्री पहुंच सकती है ना पुलिस पहुंच सकती है। मोहल्ले की अगल बगल की गतिविधियां निश्चित रूप से एक दूसरे के समक्ष आती है, लेकिन चूंकि आदमी डरता है, जो हमारा सिंपल मध्यम वर्गीय है, गरीब है, वो डरता है पुलिस के सामने से। तो ये डर जिस दिन हम खत्म कर देंगे, उस दिन से इस देश में हमारे पास आतंकवाद से लड़ने का कोई भी मंसूबा। आज पाकिस्तान में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति जाए हिंदू और वो आतंकवादी घटना करके देख ले कि वहां पे इस तरह का माहौल बना दिया गया है। ये दूसरे देशों में जाए तो जो हम ये माहौल जो अन्य देशों में है, वो इस देश में क्यों नहीं पनप पा रहा है, ये एक सोचने का सबसे बड़ा विषय है। जहां तक हमारे यहाँ पर एक चीज हो रही है सर, द्विवेदी जी, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, ये एक इंप्रेशन है। राकेश प्रजापति जी नमस्कार, वेलकम टू द शो सर, स्वागत है। राकेश प्रजापति जी समाजवादी पार्टी के यूपी से। सर संजय द्विवेदी जी, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा वो ये था कि उद्धव ठाकरे जी का रवैया तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो शर्जील इमाम और बाकी सब लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। उनकी तरफ से आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई जो आप बात कर रहे हैं।
आप तो बड़ी नहीं, अच्छी बात कर आपको रहे लग हैं। रहा होगा सर, ऐसा नहीं है, ये आपको लगता होगा। लगता नहीं है सर, देखने संजय से राउत जी लगता रोज होगा बोलते कि हैं कांग्रेस और सर, हर रोज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे। हम एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो लोग चाह रहे नहीं साहब हम जितने आतंकवादी हैं उनका हम साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिए, हमारी पार्टी जो है, चाहे माननीय उद्धव ठाकरे हो या हम शिव सैनिक जो है, जी। वो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों, नीतियों, आदर्शों पर बिल्कुल चल रहे हैं। और इस देश की सुरक्षा, इस देश की रक्षा, ये हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है, हमारे वाह खून जी वाह, में बल्ले बल्ले। पिछले 35 सालों में इस चीज का ताना बाना बुना हुआ है। हम कभी भी देश के विरोध में राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते। ये वेरी बिल्कुल गुड। मैं सो लेट्स इस गो मंच के माध्यम से कह सकता हूँ आपको। लेट्स गो टू प्रोफेसर प्रजापति। प्रदीप जी। प्रजापति साहब, योगी जी कल मोदी जी से मिले, कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद भी हो गए, सोमनाथ मंदिर का छोटा रेप्लिका योगी जी ने मोदी जी को प्रदान कर दिए। आरएसएस को इनसाइट साथ में लेके, समन्वय में लेके कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। विकसित भारत की राह भी दिखा रहा है। रिक्रूटमेंट 1.5 लाख, विकसित भारत के टोटल 10 पॉइंट एजेंडा लेकर 2026 में योगी जी ने पूरा प्लान आउट कर दिया मोदी जी के साथ। आपका क्या एजेंडा है? डेवलपमेंट का एजेंडा है, सिक्योरिटी का एजेंडा है, गंगा जिस प्रकार से अलग अलग स्कीम्स लेकर आए हैं, एब्सोल्युटली किस प्रकार से आप संघर्ष करोगे योगी जी के जो एडवेंचर स्कीम्स है, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्कीम्स? डॉक्टर प्रजापति साहब। प्रदीप जी, हाँ, आपको पता नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है इस समय? उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिनों पहले 23 दिसंबर को ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो हल्ला मच जाता है, तूफान आ जाता है, ये कहिएगा। क्योंकि 23 को मीटिंग होती है, चौतरफा जब इसकी निंदा होती है, तो 26 दिसंबर को भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी पहले तो लिखित में विधायकों को नोटिस भेजते हैं कि इस तरीके की मीटिंग क्यों की गई। उसके बाद बाकायदा प्रेस में आकर के मीडिया के सामने भी कहते हैं, चेतावनी भरे लफ्जों में कहते हैं कि इस तरीके की मीटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस बात से ब्राह्मण नेता जो हैं, और विशेष रूप से जो ब्राह्मण विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो नाराज हो गए। क्योंकि उससे लगभग 6 महीने पहले क्षत्रिय समाज के विधायकों की भी मीटिंग हुई थी, तब कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि इस पूरी चर्चा के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल साइलेंट रहे, कोई भी उनका बयानबाजी नहीं आई। लेकिन भाजपा के जुड़े हुए ब्राह्मण समाज के जो उतने भी विधायक थे, वो इस घटना के बाद जब से ये मना किया गया है तब से बड़े नाराज हैं, और यहां तक कि उनके समर्थक भी नाराज हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव जी ने 28 दिसंबर को एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करके ये कहा था कि अब शीघ्र ही जल्दी से दिल्ली से क्लास लगने वाली है, या दिल्ली से बुलावा आने वाला है, या दिल्ली में जाकर के फटकार लगने वाली है। अब ये तो सब आप बता रहे हैं प्रदीप जी के ये बातें हुई है, ये बातें कोई बाहर तो आकर के ना तो योगी जी ने बताई ना मोदी जी ने बताई, तो बाहर कैसे पता चल गया भाई ये बात हुई है? वास्तविकता यह है कि हाजिरी लगानी पड़ी है जाकर के तीनों ही लोगों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को, और दूसरे उप मुख्यमंत्री हमारे जो मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको जाकर के हाजिरी लगानी पड़ी। चूंकि ये घटनाक्रम इतना ज्यादा परेशान कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये पूरा घटनाक्रम, आप बात करिए ना ब्राह्मण समाज के नेताओं से, उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मण समाज के नेताओं से बात करिए, देख लीजिए कितनी विकट करके नाराजगी है। भाई उसके अगले ही दिन पंकज चौधरी जी दिल्ली में जाकर के अपने कुर्मी समाज के नेताओं से मिलते हैं,
और बाकायदा कुर्मी समाज के नेताओं के साथ फोटो डालते हैं और लिखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, राष्ट्रीय महामंत्री मिले, ये मिले कुर्मी समाज के। वाह भाई वाह, क्षत्रिय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुर्मी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं, विधायक इसके पीछे मीटिंग कर वजह रहे क्या है हैं, ये तो बताइए कोई ना प्रदेश। सर, इसके पीछे वजह क्या है ये बताइए। क्योंकि 2 या 3 जो गैर मुस्लिम माफिया जो हैं, उसमें से वो एक विकास दुबे का मामला था, उसके बाद 2-3 और में से ऐसे मामले आए जो ब्राह्मण समाज के तथाकथित दबंग हैं या बागी हैं, कह दीजिए उनको, डॉन कह दीजिए, उनका एनकाउंटर हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो ये ब्राह्मण समाज के साथ क्या है, कोई खास प्यार है मतलब योगी सरकार का, डॉक्टर प्रजापति? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने नस पकड़ ली ना, असली नस पकड़ ली। असली बात यही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें आपने दबंग कहा, माफिया कहा, क्या मुख्यमंत्री जी के सुजातीय लोग माफिया नहीं है, दबंग नहीं है? अखिलेश यादव जी ने तो पूरी एक लिस्ट पढ़ी थी विधानसभा में, वो लिस्ट मैं भी पढ़ सकता हूं, आपके पास भी है, आप पहले भी एक बार डिबेट में आपने बताया था। पूरी एक लिस्ट है। उस लिस्ट में किसी एक माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये ब्राह्मण समाज पूछ रहा है ना आज, ये ब्राह्मण समाज भी पूछना चाहता है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैं साफ कह रहा हूं, अगर हाँ उत्तर प्रदेश में पीडीए के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर तो ब्राह्मण समाज है, निश्चित रूप से। तो प्रदीप जी, ये मीटिंग केवल और केवल इसलिए थी। दूसरा, और मैं बता रहा हूं मीटिंग क्यों थी, दूसरा इसलिए कि इनके कई मंत्री हैं जो पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं अपने कार्य में, पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उन्हें मंत्री पद के एबीसीडी, मंत्रालय के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, मंत्रालय के बारे में, और कोई कार्य उनका दिखाई नहीं देता है। ऐसे मंत्रियों का सुनते छुटकारा भी करना है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है। आखिर में पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ये आखिर 4 साल तक ऐसे मंत्रियों को क्यों ढोया गया? अब दूसरा प्रश्न यह है कि जिन्हें तुम नया बनाओगे, अब 1 साल का चुनाव का समय नहीं बचा हुआ है, वो 1 साल में समझेगा क्या, काम क्या करेगा? पहले तो समझने में ही लग जाता है, मंत्रालय को समझने में ही बहुत दिन लग जाते हैं, तो काम क्या करेंगे? आखिर धरातल पर इनका कोई काम इसीलिए नहीं उतर पा रहा है क्योंकि सारी व्यवस्था इनकी चौपट है। तो प्रजापति साहब, इसके पहले कि मैं वापस जाऊं विनायक अंबेडकर साहब के पास, योगी साहब ने ये चीज कही है, योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने ये कहा है कि जो डिफेंस कॉरिडोर है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है वो जबरदस्त है। जो सैमसंग ने हब बनाया है वहां पे, बाय द वे, इट इज द लार्जेस्ट हब फॉर मोबाइल फोन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर सैमसंग, वो यूपी में है। एप्पल कंप्यूटर्स और एप्पल फोन्स, आईफोन्स, वो भी यूपी में बन रहे हैं। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर की तो बात छोड़िए, साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो फॉरेन एक्सचेंज आज की तारीख में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यूपी में आ रही है, उन्होंने ये कहा था कि पहले तो हम लोगों का लक्ष्य ये था कि हम भारत के जीडीपी में $1 ट्रिलियन हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब उन्होंने कहा कि वी विल कंट्रीब्यूट $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन, यानी $1,500 बिलियन। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये साइज होगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, यानी इकोनॉमी का। आपको ये सब लक्षण या आपको ये सब जमीन पर दिख रहे हैं क्या? बताएं सर प्रजापति साहब। राजीव जी, बस मैं तो इसका एक ही लाइन में उत्तर देना चाहता हूं, ज्यादा मुझ पर नहीं आता। व्हाट इज द पर कैपिटल इनकम ऑफ यूपी? पर कैपिटल इनकम क्या बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई? हाउ मच? नंबर ऑफ फिगर्स बताएं कि नंबर ऑफ फिगर्स, इतनी इनकम, इनकी इतनी पर कैपिटल इनकम में वृद्धि हुई है पिछले 8 सालों में, तब तो मैं मान लूं कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, तब तो मान लूं मैं ये सब कुछ हो रहा है, ये व्यवसाय आ रहा है, ये इंडस्ट्री आ रही, भाई जब पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रही है आपकी जी, और फिर मैंने कई बार आपको बताया कि आखिर उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों, कई लाख संविदा कर्मचारी जिनका नाम मैंने कई बार आपके चैनल पर गिराया, फिर गिनाते रहा हूं, शिक्षा मित्र,
रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा बहनें, विद्युत संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, 102 नंबर पर काम करने वाले कर्मचारी, 108 नंबर पर काम करने वाले कर्मचारी, रसोईया, अनुदेशक, बहुत सारे मैंने गिना दिए, अब और भी बहुत सारे रह गए हैं, शिक्षा प्रेरक, रोजगार सेवक। इनको 1 रुपए पिछले 9 सालों में 1 रुपया इनका किसी का बढ़ा हो तो जी। भाजपा का प्रवक्ता बैठा हो तो मुझे बता दे यहाँ पर। जी लेकिन दूसरी चीज एक ये रुपये है, तो कहा, आखिर आखिर बस यही मेरा क्वेश्चन यही है राजीव जी, आखिर ये जो पैसा आता है वो जाता कहाँ है, जा कहाँ रहा है? ये आम आदमी को, भाई पर कैपिटल इनकम बढ़ी नहीं, किसी भी संविदा कर्मचारी का कुछ बढ़ा नहीं, 5 किलो राशन का एक क्वेश्चन और लास्ट और क्वेश्चन मेरा वो, 5 किलो जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश के कितने लोगों ने ये कहा कि अब हम 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो सैकड़ों लाखों फैक्ट्रियां आ गई, अब क्या जरूरत है 5 किलो राशन की? Right, so मुझे let इतनी फिगर, ये 3-4 फिगर दे दे मुझे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हो। let me go to Vinayak Ambekar sahab. Sir, the per capita income of Uttar Pradesh in 2017-18, in fact this figure is actually of 2016, was 57,944 rupees per annum. Today it is 1,06,572 rupees. So there has been a growth. I agree, in terms of the national average, UP lags behind. However, per capita income का जहां तक सवाल है, per capita income is growing everywhere in India. But the problem is, Vinayak Ambekar sahab, our population is also growing. So for the per capita income really to go up to 5 lakhs or thereabouts, you need a growth of about 12 to 13% in GDP. At the moment we are at 8.2%. So Vinayak Ambekar sahab, how do we balance the two? Sir, आप बताएं sir, please. Ambekar sahab. बेसिकली ये जो पर कैपिटा इनकम है वो ग्रो होने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था, जो हो गया है जी। लास्ट 9 साल की जो बात कर रहे भाई साहब, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था वो हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश की पूरी जनता जो थी वो पूरे भारत भर प्रवास करके भारत भर में जाके उधर काम करती थी, अभी उनको उत्तर प्रदेश में सब मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे होगा। उसके लिए जो काम हुआ है वो सब दुनिया, ये यूपी की जनता के सामने है, और यूपी की जनता को ये कितना भी गुमराह करने को देखे वो गुमराह होने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे सुशासन का अनुभव किया हुआ है। जी, let's come back to Maharashtra. Yeah, I want to, Ambekar Sahab, I want to ask you, Brand Thakre is absolutely confident. Uddhav Thakre ji, Raj Thakre ji, they are saying we are going to show महाराष्ट्र की ब्रांड ठाकरे किस प्रकार से इफेक्टिव है। भले आपने यूपी एकनाथ शिंदे जी ने ओरिजिनल बड़ा साहब ठाकरे को छोड़ दिया, चोरी किया, पार्टी का सिंबल चोरी किया, हर चीज चोरी किया, but the people are with them and brand Thakre is going to prove the difference. How do you see that, especially Pune और मुंबई? अम्बेकर साहब, ये जब ब्रांड ठाकरे बोलते हैं तो बीच वाले 22 साल ये अलग अलग क्यों हुए थे? जब ब्रांड ठाकरे स्ट्रांग था तो उन्होंने अपने ईगोज के लिए अलग अलग काम पार्टीज निकालने का काम किया, मगर दोनों पार्टी फेल हो गई। उद्धव जी के पास अच्छा स्ट्रांग मास था, वो मास उनको संभलने को नहीं आया, और जो राज ठाकरे साहब थे उनके पास मास कभी जमा नहीं हुआ। उनके पास जो थे वो सब यंग जनरेशन थी, वो भी अभी फ्रस्ट्रेट होके आधी तो बाहर पड़ गई है, और आज भी उनके पार्टी से अच्छे अच्छे जो उनके जो वफादार लोग थे वो निकल रहे। आपको ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया, आपको भी ज्वाइन किया, they joined you, अम्बेकर साहब। नहीं, किसको ज्वाइन किया ये बात अलग है सर। दूरी ने ज्वाइन कर लिया, फिर कोई कामले जी है वो ज्वाइन कर लिया, अलग अलग साहब के पास गए, you know everything। आप एक बात समझना चाहिए कि जो आदमी उनके साथ 30-40 साल की वफादारी किया था, वो जब फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो मास्क की और ब्रांड की बात क्या कर रहे हैं? ब्रांड कब बनता है? ब्रांड बनने के लिए ब्रांड की जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के वर्कर तो उनके साथ होना चाहिए, सेल्समैन उनके साथ होना चाहिए। आप एक ब्रांड बोल रहे हैं, इसके लिए मैं ये नाम ले रहा हूँ, तो हर कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा और उसमें हर दिन एडिशन होती रहेगी, तो ब्रांड बनेगा, ब्रांड टिकेगा, ब्रांड बढ़ेगा। उनके तो सब लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं,
तो ये ब्रांड कैसे बनेगा, इफेक्टिव रहेगा ही नहीं है, ये ब्रांड फिनिश हो गया है ऑलरेडी। जी। बट अंबेडकर साहब, वॉट फडणवीस साहब ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फोटोग्राफर और कार्टूनिस्ट एक साथ आया, किसी ने उनको कहा, बट अलग ही कुछ वर्णन दिए, कंफ्यूजन एंड करप्शन। तो बट द मेन मुद्दा जो दोनों ठाकरे जी बोल रहे, दोनों भाई लोग बोल रहे कि 70 अनअपोज्ड का आप जवाब दो अंबेडकर साहब। दे आस्किंग यू द बीजेपी कि 70 अनअपोज्ड कभी इलेक्शन में होता नहीं, इतने सारे अनअपोज्ड, आपने मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल किया अंबेडकर साहब। तो उन्होंने केस करना चाहिए मसल पावर और मनी पावर के अगेंस्ट, उन्होंने केस करना चाहिए, देश का कानून उनको जवाब देगा। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं था उसी वार्ड में कि जो सक्षम है कि हमारे कैंडिडेट का मुकाबला करे। तो क्या हर व्यक्ति, भले वो उद्धव जी का कार्यकर्ता हो या राज साहब का कार्यकर्ता हो, उसको खुद का जो ताकत है वो मालूम रहता है, खुद की उसकी ताकत क्या है। यदि वो ताकत उसके पास नहीं है तो बेचारा वो खड़ा नहीं हुआ। तो ये जब खुद का कैंडिडेट नहीं दे सके तो ये लोग दूसरे के ऊपर आरोप करेंगे मनी पावर और मसल पावर का, ये गलत है ना। तुम यूज करो ना, तुम बोलते हमारे इसमें इतनी ताकत है कि हम सब ये नहीं होने देंगे, इलेक्शन कैसे होता है मैं देखता हूँ, और उत्तर भारतीय लोग इधर आके कैसे रहते हैं मैं ये देखता हूँ, मराठी को अपोज करने वाले कैसे रहेंगे ये मैं देखता हूँ। तो ये सब बात करते रहते हैं, ये खाली टीवी शो के लिए बचे हुए, ग्राउंड लेवल पे ये सब फिनिश है। सर बिफोर आई गो बैक टू संजय द्विवेदी साहब, वन स्मॉल लिटिल थिंग, क्योंकि यूपी की बात हो रही थी, आई मस्ट क्लैरिफाई हियर सर, द growth rate, I don't know whether you are aware of this figure, अंबेडकर साहब एंड प्रजापति साहब एंड संजय द्विवेदी साहब, यूपी का ग्रोथ रेट उसकी बात कर रहा हूं मैं सर। द यूपी ग्रोथ रेट is 11.85% for 2025. 11.85%. So that is bigger than the national growth rate. I mean, Yes. that's amazing. And not only that, state GDP is roughly around $360 billion. $360 billion. उसके अलावा you are looking at purchasing power parity, यूपी's economy PPP जो है, it's at about $1.52 trillion. So numbers are very good. In fact, UP is number 2 after Maharashtra in terms of state GDP. They have already overtaken Tamil Nadu, UP. So from a Bimaru state, it has actually come to this, which is fantastic. But as I said earlier, and as I think you agreed with me, fact remains, it all depends upon which end of the telescope you want to look at it. आप अगर देखेंगे साहब पर कैपिटा इनकम तो नीचे है यार, नीचे अब क्या करें, the population is huge, as I said, but अगर यूपी यही ग्रोथ रेट सस्टेन कर पाता है, and there is no reason why they shouldn't, per capita will also grow as it has been growing. It will grow up to 5 lakhs, 5 लाख तक चली जाएगी 2 या 3 साल के बाद, ऐसी क्या बात है। But we have to wait. Let's be very clear. It's a very slow process, very long process. द्विवेदी साहब, आप ये बताएं, जहां तक आपका प्रश्न है, आप बार बार आप यही आर्गुमेंट आप भी देते हैं बार बार, अगर आंकड़े इतने अच्छे हैं तो लोगों की हालत खराब क्यों है, अगर आंकड़े इतने बढ़िया हैं तो नौकरियां कहां हैं। लेकिन नौकरियां तो है ना सर, मतलब अगर आप सिर्फ मुंबई शहर की बात कर लें तो मुंबई शहर में सर बेरोजगार कोई मिलेगा नहीं आपको अभी, वेरी फ्रैंकली। उसको एज अ जोमैटो के लिए, स्विगी के लिए, ब्लू डार्ट के लिए, बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम मिल जाता है सर। यहां आज की तारीख में हाँ सरकारी नौकरी नहीं है, दे यू आर एब्सोल्युटली राइट, सरकार के पास अभी नौकरी देने को नहीं है, और सरकार ने क्लियर कट बोला कि हाँ भाई हम नौकरी देंगे भी नहीं, जो भी होगा वो आउटसोर्स करेंगे। तो सर आपको लगता नहीं कि अभी जरा परिभाषा बदलनी चाहिए कि नौकरी का मतलब क्या, रोजगार का मतलब क्या, कि घर में इतनी इनकम आनी चाहिए, वही मतलब होना चाहिए ना रोजगार का। द्विवेदी साहब प्लीज। देखिए बजाज जी, जो अंतर 2014 के बाद आया है, या जो 2014 से पहले 56 साल करीब राज किया कांग्रेस ने जी, और ये उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि सब उनके वर्कर से उनके पास पैसा आता रहा है तमाम संसाधनों के द्वारा, लेकिन कभी कांग्रेस पास इतना, कांग्रेस फंड में कभी इतनी पूंजी नहीं आई।
बहुत स्पष्ट है, आप चाहे देख लीजिए, आपके पास आंकड़े पूरे होंगे। है सर। 2014 के पास उससे क्या हुआ कि जो हमारे व्यापारी वर्ग थे या जो और लोग संसाधन थे, जो जिनको वो थी, वो ये चीजें नहीं कर पाते थे, चाहे महंगाई नहीं बढ़ा पाते थे और चीजें जो है वो नहीं कर पाते थे। आज रियल एस्टेट की हालत खराब है, वो आप भी देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, बिहार में देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश देख रहा हूँ, हर जगह मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट से हालत खराब है। और रियल एस्टेट में कितने वर्कर आते थे ये आप आकलन कर लीजिए, चाहे अगर पूछेंगे मैं आकलन कर दूंगा। अब आज की डेट में सब क्या है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर, उनके पास तो पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ बीजेपी के फंड में 10,000 करोड़ इकट्ठा हो रहा है, 2,000 करोड़ से राष्ट्रीय कार्यालय बन रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यालय आज से 56 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई, या जितने राष्ट्रीय दल थे वो नहीं बना पाए। 20-20 करोड़ के जिला कार्यालय 1,000 बन गए, 1,000 20-20 करोड़ के जिला कार्यालय बन गए। अब जो फंड 10,000 का आया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, पहले चंदा लिया जाता था 2014 से पहले। ऐसा नहीं कि पार्टियां चंदा नहीं लेती थी, मैं चंदा के खिलाफ नहीं, लेकिन चंदा लेने के तरीके उसमें अलग थे, ये आपको शायद मालूम होगा। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया, उसमें चंदा लेने के तरीके अलग हो गए। आज आप बीफ वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टाटा, तमाम ऐसी एजेंसियां, मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम लोग जो है आज इनके फंड में पैसा दे रहे हैं। सर मुझे एक बात बता दीजिए, आपकी मेरी चर्चा हो रही थी कांग्रेस समय में, उन्होंने कहा कि साहब ये हमको चंदा देते हैं तो इनका तो पक्ष हम लेंगे, ये आप ही शब्द थे सर, आप ही ने मुझे बताया था कि साहब कांग्रेस के समय में 4-5 लोगों के नाम आपने लिए थे, इनसे चंदा लेते हैं तो इनका हम पक्ष लेंगे। लेकिन आज उस तरीके से अगर बीजेपी चंदा ले रही है, टोल बॉन्ड में पैसा ले रही है, तो क्या उनकी मदद नहीं करेगी? एक बहुत छोटा सा प्रश्न है बहुत। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन आप अगर सर्वे करना चाहें, अगर आप सर्वे करें देश में, तो आपको ये चीजें मालूम पड़ेंगी कि हमारी स्थितियां क्या हैं। जैसे अभी मनरेगा थी, मनरेगा मैं बार बार कह रहा था कि राजीव गांधी ने कहा था हम यहाँ से 100 रुपए भेजते हैं, 30 रुपए पहुंचते हैं, वही चीज मनरेगा में आई कि नहीं आई? बीजेपी प्रवक्ता कहने लगे जब मनरेगा में उनको पैसा नहीं मिल रहा था। अब देखिए बात, और यही राजीव गांधी खिल्ली उड़ाते थे कि उन्होंने कहा था पैसा नहीं पहुंच रहा, कहते थे मैं सब स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम बैंकों के माध्यम से उनको डायरेक्ट पैसा दे रहा हूँ। क्या हुआ? आज मनरेगा का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? और जबकि मनरेगा सबसे ज्यादा विरोध किया था किसी ने 2014 से पहले, तो आधार कार्ड और मनरेगा विरोध करने वाले थे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मनरेगा और इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। और आज उसका नाम जो नाम था, उसका नाम क्यों चेंज करना पड़ रहा है? उस नाम चेंज करने के पीछे कौन सी राजनीति है? ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहते साहब भ्रष्टाचार की बात थी, या अभी आपने कहा था साहब जो उत्तर प्रदेश में जो माफिया है या बाहर कहीं माफिया है, वो जो माफिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जो भारतीय जनता, चाहे पंजाब ले लीजिए, एक जिनको आजीवन कारावास है, वो रोज घर के बाहर, जेल से बाहर, रोज जेल से बाहर, रोज जेल से बाहर, और जो बाकी माफिया है उनके लिए तमाम चीजें खराब है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप रामराज की बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि मैं रामराज की बात करता हूँ, जय श्री राम का नारा लगाता हूँ, तो जय श्री राम के नारे में सभी, लेकिन द्विवेदी जी एक छोटी सी बात, द्विवेदी जी आपने कुछ कहा था अभी, मैं उसके बारे में पूछ लूं, रियल एस्टेट के बारे में पूछ लूं सर, आपने कुछ कहा अभी, ये आंकड़ा है मेरे पास सर, और ये आपकी जो यूपी की जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है, बिल्डर्स एसोसिएशन है, उनका आंकड़ा है सर, ये लखनऊ के लिए। लखनऊ में अंबेडकर साहब सुनने वाली बात है, प्रोफेसर प्रजापति प्लीज, आई वुड लाइक योर अटेंशन sir, there has been a 48% increase in terms of property values in the first quarter of 2025 in Lucknow. तो आप तो कह रहे हैं रियल एस्टेट ग्रो नहीं कर रहा, या तो 48% से ग्रो किया है सर, 48% इन लखनऊ इटसेल्फ। मैंने क्या, आप तो लखनऊ में बैठे हैं सर। बजाज जी मैंने क्या कहा, आपने सुना ही नहीं। जी बोलिए सर। मैंने कहा रियल एस्टेट में जो हमारे मल्टी स्टोरेज बनती थी, मकान बनते थे, जो प्राइवेट बिल्डर बनाते थे, मैं सरकारी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी काम बहुत चल सकता है या दाम भी बढ़ सकते हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। जो रियल एस्टेट में काम होता था, जो बिल्डिंगें बनती थी या तमाम मल्टी स्टोरीज बनती थी, वो चाहे लखनऊ हो चाहे कहीं भी हो, आज बंद है पूरी जगह। आप देख लीजिए टोटल जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, वो सरकारी जो पैसा मिल रहा है, सरकारी जो काम है वो सिर्फ चल रहे हैं।
अब आप कहें जब 48% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, वो तो अलग मैटर हो गया ना। उससे और वर्कर बेरोजगार से कोई मतलब थोड़ी ना है। अगर उसके दाम त्रिवेदी जी। जमीनी दाम बढ़े हैं तो बिल्डर के लिए बढ़े हैं ना, महाराष्ट्र वो में वर्कर के लिए थोड़ी ना बढ़े हैं। महाराष्ट्र में ब्रांड ठाकरे क्या स्वीप करेगा? आपने अंबेडकर साहब के बातें सुने, बोले कोई ब्रांड ठाकरे नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कोई कैमरामैन और कोई कार्टूनिस्ट एक साथ आएंगे तो यहां के महाराष्ट्र के सिविक पोल्स के इतिहास को बदल नहीं सकते। पहले फडणवीस साहब ने कहा मैं 1 रुपया इनाम दूंगा उद्धव ठाकरे जी को अगर कोई भी भाषण में डेवलपमेंट की बात करे, और फडणवीस साहब ने कहा अब तक मेरा 1 रुपया बचा हुआ है, 1 रुपया मेरा बचा हुआ है। आज तक फडणवीस उद्धव जी ने कभी डेवलपमेंट की बातें नहीं की। कभी करोगे डेवलपमेंट के बाद? महाराष्ट्र चुनाव तो लोकल बॉडी 15 तारीख को खत्म हो जाएंगे। द्विवेदी जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात बता दें प्रदीप जी, बजाज जी, बोलिए। कि लोकसभा चुनाव हुआ, हम जीते, महाविकास अघाड़ी जीती सर, बीजेपी सब मायावती की हालत खराब हो गई। जब चुनाव आए हमारे विधानसभा के चुनाव आए, जी। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा कि उसमें वोट चोरी या तमाम ऐसी चीजें हुई, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिंपल एक चर्चा करूंगा। जो ये कांग्रेस के लिए कहते थे या आज आम आदमी पार्टी के लिए कहते थे कि साहब लोग रिवड़ी बांट रही, एक नाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री होकर अगर वहां लाडली बहनों को 21 रुपए देने की बात कही, जी। भोजन थाली देने की बात कही, 1500 मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की बात कही, जो हमारे 25 साल से 60 साल से ऊपर है, 25 लाख नौकरी, अभी आपने कहा साहब नौकरी के लिए सरकार ने मना कर दिया, तो 25 लाख नौकरी सरकारी है या हमारी प्राइवेट नौकरियां हैं। इसके बाद किसानों को ऋण माफ करने की बात कही, इसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हम बिजली बिलों में 30% की कटौती करेंगे। तमाम ऐसी 10 गारंटियां इन्होंने दी। क्या एक भी गारंटी आज की डेट में पूरी हुई? देखिए, लोकतंत्र में न हम है, न आप है, न कोई है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रजातंत्र में अधिकार होता है हमारे देश के रहने वाले हमारे सम्मानित नागरिकों का। वो नागरिक किसको चुन के भेजना चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको अगर लगेगा नहीं ठाकरे बंधु 22 साल बाद हमारे साथ में है, एक साथ है, और उद्धव ठाकरे 2.5 साल में उत्तर भारतीय हो चाहे बिहारी हो, कोरोना में जो फंसे हुए थे, उद्धव ठाकरे ने अपने दम पे टिकट खरीद के टिकट लेकर उनको उत्तर प्रदेश भेजने का काम किया। क्या बीजेपी नहीं कर पा रही थी क्या? जो कोरोना काल में जो हमारे उत्तर भारतीय फंसे हुए थे उनको भेजने का काम किसने किया? या कोरोना काल में जो ऑक्सीजन खत्म हो रही थी पूरे देश में, जो जिसका सबसे बड़ा काम था हमारे केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन वो ऑक्सीजन अरेंज नहीं करा पाए। उस ऑक्सीजन अरेंज करके किसी को मरने न देना, ये तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि। एक चीज आप भूल रहे हैं सर, एक चीज आप भूल रहे हैं। एक जेंटलमैन है जिनका नाम है डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल जो एक वॉर रूम बना था, कमेटी बनी थी केंद्र सरकार द्वारा कोरोना को मॉनिटर करने के लिए कि कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है, उन्होंने भी तारीफ करी थी उद्धव ठाकरे सरकार की। मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर पॉल चेयरमैन थे उस कमेटी के, उन्होंने भी तारीफ करी थी कि उद्धव ठाकरे जी ने अच्छा काम किया। पर लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, अभी द्विवेदी जी ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ रहा है, especially with regard to real estate. Sir, I have got figures over here कि employment rate और real estate sector जो है, it is projected to grow at about 9.2%. All figures are not available. 9.2% in 2025, sir. और उसके अलावा जो यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने बोला है टिल अगस्त, अप्रैल टू अगस्त 51,761 jobs were created. So sir, don't you think we are being very unfair over here? कि यूपी में जो भी हो, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है ना सर। कि अगर इतनी फैक्ट्रीज बन रही हैं तो वो फैक्ट्रीज कोई बना रहा होगा। अगर वहां पे सैमसंग की फैक्ट्री है, लार्सन एंड टुब्रो की नई डिफेंस वाली फैक्ट्री है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई डिफेंस वाली फैक्ट्री है, अडानी जी की एम्यूनिशन वाली फैक्ट्री है, उसके अलावा एप्पल वहां पर आया है, डेल कंप्यूटर्स वहां पर आ गए, तो सर कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा ना। तो यूपी के लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। अब आप बताएं प्रजापति साहब। नहीं, देखिए राजीव जी जी सर,
कथनी और करनी में बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी की। जब तक कथनी और करनी में समानता नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं है। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, ये सब चीजें आप धरातल पर के आकर के पता करिए, या लोगों से पता करिए, बातचीत से पता करिए कि रोजगार की स्थिति क्या है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं लोगों को देखता हूं, समझता हूं, रोजगार की स्थिति बुरी है। और इसीलिए सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर बोलिए सर, सबसे बोलिए, ज्यादा बोलिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो तो वो एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ है। शिक्षा पर कोई चर्चा ही नहीं होती। आप कभी मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात समझिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी के कोई स्टेटमेंट, या एक हमारे डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरे पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी, इनके कभी स्टेटमेंट आप शिक्षा से जुड़े हुए आते हुए सुने हो तो आप मुझे बताएं जरूर कि हाँ मैंने शिक्षा से जुड़ा हुआ, इनका कोई स्टेटमेंट किसी तरीके से आया। केशव प्रसाद मौर्य को एक काम दे रखा है, वो केवल अखिलेश यादव जी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बोलेंगे। बाकी उनके मंत्रालय में क्या हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना एक बात, कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात का मेन मकसद ये है कि कैसे डेंट पेंट किया जाए। योगी जी को डेंट पेंट करने की बड़ी वो है ना जल्दी, तो इनकी जो सरकार में डेंट पेंट की जरूरत है। जी। यानी कि जो इनके कुछ मंत्री जो नाकारा हो गए उत्तर प्रदेश के, जिन्हें अपने विभाग के बारे में ABCD नहीं पता है, विभाग में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और पता ही नहीं चलता कौन मंत्री किस विभाग में है, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी करके कुछ लोगों को, नए लोगों को मौका देना, नए लोगों को मौका देना, ये भी इनका वो है। वो इसीलिए मैं तो कह रहा हूं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। डॉक्टर, और ये आने वाला समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति। डॉक्टर प्रजापति साहब, योगी जी जिस तरफ से यूपी दिवस ग्लोबल होगा, फास्ट पास, छोटे छोटे बिल्डिंग्स का क्लियरेंस मिनटों में क्लियरेंस होगा, छोटे छोटे बिल्डिंग का क्लियरेंस। आगे जाके 33,000 पुलिस जो कांस्टेबल नौकरी वो सैंक्शन कर दिया विद रिलैक्सेशन ऑफ एज। 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स ये 2026 में क्लियर करेंगे योगी जी। 3 करोड़ महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 3 करोड़ लखपति महिला दीदी, जिस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया है, तो ये एक से एक आप वहीं पर अटके हैं डॉक्टर साहब कि बुलडोजर कोडिंग सिर्फ वाले स्कैम पर क्यों, माफिया पे क्यों नहीं चलाते। आगे जाके ये 3 करोड़ जो एलिमिनेट किया हमारे वोटर्स को, वो सब पीडीए के हैं। ये एक तरफ डेवलपमेंट की आवाज है और एक तरफ किस प्रकार से देखते हो आप 3 करोड़ हमारे वोटर्स डिलीट किए, ये पूरे पीडीए के वोटर्स है। कोडिंग आपका बुलडोजर अब क्यों नहीं चल रहा है, कोडिंग माफिया, तो क्या ये लोगों में इंपैक्ट क्रिएट करेगा डॉक्टर साहब? प्रदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा से जुड़े हुए लोग जो हैं, चाहे कोडीन सिरफ सही, चाहे वो प्रतापगढ़ का मामला सही, चाहे वो अन्य तरीके के कितने भी आपराधिक मामले हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाला तत्कालीन नवीन मामला, बताइए एक बलात्कारी को, सर वो तो कोर्ट का मामला होगा ना सर। बलात्कारी और हत्यारोप नहीं, कोर्ट का मामला है। फिर कोर्ट में दोबारा दूसरे तीसरे दिन कैसे रिजल्ट को क्या आ गया, ये भी तो है ना सोचने का सर। ये सारे लोग समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है ना सर। एक चीज आप बोल सकते हैं प्रजापति साहब, एक चीज आप बोल सकते हैं, जो अखलाक का मामला था उसके ऊपर आप सवालिया निशान लगा सकते हैं पुलिस के ऊपर और पुलिस के लीगल डिपार्टमेंट के ऊपर, कि आपने ये कैसे सिफारिश कर दी कि अखलाक की हत्या में जितने भी अभियुक्त थे उनके खिलाफ केस हटा लिया जाए। देयर आई एग्री विद यू, वो तो मतलब कुछ बनता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, अभी अभी खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया अभियान शुरू किया है। रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसके पास जो सरयू नदी है, उनका यह कहना है कि अगले साल दिवाली तक उसका जो पानी है
वो अविरल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने चैलेंज दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को। और आगे जाके वाटर फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं गोमती नदी के ऊपर, लखनऊ का ट्रांसफॉर्मेशन, ये अद्भुत रेवोल्यूशनरी और आप कहते हैं ना ऐतिहासिक निर्णय है जो बीजेपी का कहना है। अब गोमती के ऊपर वाटर मेट्रो क्रिएट करना, ये ये तो डेवलपमेंट एजेंडा है डॉक्टर साहब। प्रदीप जी, राजीव जी, दोनों लोग, आप समझिए कि गंगा साफ हुई? नहीं, आज भी जाकर के देख लीजिए। नहीं होगी। 9 कानपुर में हुई है, 12 साल कानपुर में हुई है, 12 साल पहले जी, 12 साल पहले जब केंद्र की सरकार आई थी तो केंद्र की सरकार ने ये कहा था गंगा साफ होगी, और साफ नहीं होगी, बाकायदा बजट भी शायद 2200 करोड़ रुपए का 2200 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ था। जी, हुआ था। आखिर वो 2200 करोड़ रुपए कहाँ गए? क्या गंगा साफ हुई? अच्छा, एक मिनट, मेरी बात दूसरी समझ में नहीं आती। सरयू नदी में जल कहाँ से नया लाएंगे? क्या कोई प्लांट लगाएंगे बाहर, वहां से हर कहीं से, कि उससे सीधे सीधे पानी सही होकर के आ जाए? अरे देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं ना, केवल हवाई बातों करने से कुछ फायदा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिले क्या? 100 दिन में काला धन आएगा, आया क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, आया क्या? नीरव मोदी, ललित मोदी घर आएंगे, आए क्या? आने वाले। हर सांसद जो है एक गांव गोद लेगा, उस गांव को विकसित गांव बनाएगा, बना क्या? बनारस को क्वार्टो बनाएंगे, बना क्या? बहुत सारी योजना है जिनको वादा करने में कुछ नहीं है। कुछ कह दीजिए भाई, आज मीडिया है उन्हें दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो वादा करते हैं, लोग दिखा देते हैं, फिर वही झाक के 3-5। चलिए, आपकी बात को मान लेता हूं मैं कि योगी जी जवान के पक्के हैं। 8-9 महीने, 10, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, 10 महीने बाद बैठेंगे सरयू में। और सर, मैं तो 2 महीने के बाद जाने वाला हूँ। अभी दिल्ली में भी तो ये हो रहा। सुन, सर, दिल्ली की बात मत करो। दिल्ली में भी यमुना साफ करा रहे थे, रेखा गुप्ता यमुना साफ करा रही थी। नहीं होगी। और देख लीजिए, क्या साफ हो गई? क्या नहीं होगी? क्या साफ हो गई? होगी ही नहीं। जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं सर, जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे नहीं होगी। आई बी वेरी फ्रैंक विद यू। लेकिन अभी क्या है, योगी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी सर। रिवर हैज टू बी क्लीन एट सोर्स। कोई भी नदी है वो एट सोर्स क्लीन होती है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, सरकार को मुझे सरकार की प्रशंसा करनी होगी जबरन। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कानपुर में जो लेदर फैक्ट्रीज थी, टैनरीज जो थी, उनको जो बंद किया गया और उसके बाद वहां पर जो एसटीपी लगाया गया, सर वहां, सर उसकी तो कैंपेन हम लोगों ने कैरी करी है ना, 2009 से लेकर के आज तक हम लोग कैरी कर रहे हैं। वहां का पानी, उसमें बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वहां का स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। यही चीज अब सरयू में भी होगी, यही चीज अब 2-3 और जगह पर भी होगी। बट अगेन, दैट इज नॉट द वे। But let me go to Vinayak Ambekar Sahab. Vinayak Ambekar Sahab, the fact remains, irrespective of anything else, I admire Yogi for the fact that he has actually worked with Modi ji and he has said that he promises कि किसी भी तरीके से सरस्वती नदी को दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा। You know, the entire course of the Saraswati has already been charted. It was charted by ISRO. It is already there with us. Our own friend and your friend also, Rajinder Singh Sahab, the waterman of India, he has also been told कि आप भी इसमें आइए. The underground aquifers, etc., are being recharged, and there is every possibility, sir, कि अगला महाकुंभ जो होगा इलाहाबाद में, उसमें मां सरस्वती के भी दर्शन होंगे। त्रिवेणी में 3 वेणी होंगी सर। अब आप बोलें इसके बारे में, अंबिकर साहब। सर, योगी जी का डेवलपमेंट प्लान जो है वो समाजवादी पार्टी के कल्पना के बाहर का है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाया है। और योगी जी का एक है, ही इज मैन ऑन मिशन। गए 4-5 साल से वो बहुत स्पीड से काम कर रहे। पहले उन्होंने सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और अभी डेवलपमेंट करके उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको ट्रिलियंस में ले जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये बात कोई भी करे, कोई भी समाजवादी पार्टी का
आदमी कुछ भी कहे, जनता को ये सब दिखता है जो ग्राउंड लेवल पे है, जी जो रोड का डेवलपमेंट है, जो फैक्ट्रीज आई है, जो इकोनॉमी में सुधार है, जो शांति आई है, ये सब जनता को दिखता है और हमें भरोसा है कि जनता उसका रिवॉर्ड करेंगी योगी जी को। अंबेडकर साहब, जिस प्रकार से पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार जी, शरद पवार जी एक साथ आए, यू हैविंग प्रॉब्लम्स वेयर फडणवीस साहब और अजित पवार साहब के मतभेद, रविंद्र चौहान जी और अजित पवार के मतभेद, बावनकुले जी और अजित पवार के मतभेद, आशीष शेलार वर्सेस अजित पवार। आशीष शेलार जी कहा कि आपको सावरकर के आइडियोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा, करप्शन पे मतभेद है। हाउ डू यू सी दैट थिंग गोइंग ऑन, स्पेशली बिकॉज आप पुणे में बहुत पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो अंबेडकर साहब? ये बेसिकली कैसा है, ये जो विकास के काम के ऊपर युति हुई है, तो आइडियोलॉजिकली उन्होंने समझो विकास के काम के ऊपर हमारे साथ रहना है, तो धीरे धीरे उनको आइडियोलॉजी भी स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा उनको मैसेज दिया हुआ है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम कोई हमारा पार्टनर है उसके बारे में कोई अपेक्षा व्यक्त करे तो उसमें कोई मतभेद का बात नहीं होता है, तुमको आगे क्या करना है इसका इंडिकेशन है वो। जी फडणवीस साहब ने कहा पानी पिलाऊंगा और खुद वो एग्जाम्पल में पानी पी लिए, बोले ये पानी तो क्या यू आर बीइंग एग्रेसिव अंबेडकर साहब? आप ग्राउंड पे आप जानते हो यू आर फाइटिंग ईच अदर देयर, स्पेशली पिंपरी चिंचवड़ एंड पुणे। हाउ डू यू सी द बैटल ग्राउंड देयर अंबेडकर साहब? ये सर कोई मतभेद नहीं है इसमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि दोनों पार्टी जो है ऑलरेडी गठबंधन में है, चुन के आएगा तो दोनों में से एक कोई तो भी आएगा और दोनों आगे भी गठबंधन में रहेंगे। ये एक अच्छी चली हुई स्ट्रेटेजी है और दोनों राजनीति में माहिर है, माननीय देवेंद्र जी और माननीय अजित दादा, तो दोनों समझदार है करके तो इकट्ठे आए हैं, तो ये चलते रहता है राजनीति में, थोड़ा One final word from you, sir. माहौल बनाने का काम है। सर वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू एज फार एज देवेंद्र फडणवीस साहब इज कंसर्न। देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये कहा है कि जहां तक महाराष्ट्र के जीडीपी का सवाल है, महाराष्ट्र जीडीपी विल डबल, दैट्स व्हाट ही सेज, विद इन द नेक्स्ट 2.5-3 years, that's what he says, and he expects foreign investment in Maharashtra to be up by God knows how much. He didn't actually say relate the figures, but he says that he will reveal them soon. So what do you expect over there, Ambedkar साहब? ये देवेंद्र जी ने कुछ ऐसे जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जैसा MMRDA का एरिया है जिसमें क्या करना है, कोई टाइप की क्या इंडस्ट्री लगेगी। अभी उन्होंने पीछे पड़ के जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है उसको भी ऑपरेटिव किया है। अभी पुणे में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है उसका भी काम एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन स्पीड में है, तो उनके जो डेवलपमेंट का प्लान है वो सेट है। उन्होंने 35 का विजन बनाया है, 47 2047 का बनाया है, 2035 का बनाया है, और उस विजन के अनुसार एक टीम बना के वो एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो over here, what would you say? Sorry, I am interrupting you. I am interrupting you because I might forget. कि मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या पूछना है। आप अपना पूरा कंप्लीट कीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सर, नासिक में कुंभ होने वाला है, वहां पर भी बहुत अपेक्षाएं हैं। जो नासिक का कुंभ होने वाला है, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं कि the committee that has been formed over there, the people who are working over there, they've all said कि जितना कुछ इलाहाबाद में हुआ उससे हम लोग ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है उसमें सर, बताएं प्लीज। होगा सर, उन्होंने काम चालू किया है और उनका स्पीड देख के अपोजिशन भी उनको तकलीफ देने के लिए ट्राई कर रहा है, मगर उनका प्लान जो है वो बहुत अच्छी तरह से लेड आउट प्लान है और ईयर वाइज वो स्टेप वाइज वो प्लान पूरा करेंगे। नासिक का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। Right. Thank you so much, gentlemen. Thank you very much. It's been a great pleasure talking to all three of you, especially Professor Prajapati Saab. Sorry we could not talk about the Prajapati Samaj today, but next time we will talk about them, especially with regard to the Prajapati Samaj, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है सर, उस विषय के बारे में जरूर बात करेंगे। Thank you so much sir. संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, and always a pleasure विनायक अंबेडकर साहब. I hope and pray you grace us with your presence more times. Yes, It'll be sir. wonderful. Sure. Thank you very much. Thank you sir. Namaskar. Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. But I tell you what, but I think we need to publicize this a little bit more, especially with regard to Made in China. Yes, I mean, you rightfully highlighted this very particular अरे thing Made that in China यार, चाइना का everybody माल is following the Operation Sindoor model now, neutralize
the Chinese assets. Whosoever has got Chinese radars, better watch it. I mean, you're dead meat. Let me tell you very frankly, I am not even going into the ethics of what Trump did. Was it right? Was it wrong? Arey bhai, as far as US is concerned, they had done it earlier. They did it to Noriega in Panama in 1989. They've done it now again to Maduro and his wife. Not that Maduro was a paragon of virtue, but all the same, I agree that you don't have the right to go interfere, you know, in any other country's affairs. And I must admire Mr. Trump's honesty though. Trump साहब बड़े honest आदमी है साहब. उन्होंने कहा कि मैं तो तेल के लिए आया हूँ. We have come here for the oil. Let's be very clear. और जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो मेडुरो साहब कौन से कमरे में थे, कहां पर थे, एक एक चीज मालूम है डेल्टा फोर्स को. मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट साहिबा जो है, जिनको स्वेरिंग किया गया है, मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ डील तो नहीं हो गई थी इनकी कि वहां आ जाओ भाई कर लेंगे ये सब. लगा सारा या खुद ही खड़े थे कि आपके जहाज कभी आ रहे हैं, बताइए, मुझे लेके जाइए यहाँ से, मेरे लिए बड़ी तकलीफ हो रही है. ये सारे जितने ड्रग माफिया के लोग हैं मुझे बहुत तंग कर रहे हैं. चलो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूंगा यूएसए में जाकर के. लेकिन मेरा ये कहना है प्रदीप जी कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया और चाइनीज इक्विपमेंट के साथ किया, एग्जैक्टली वही चीज बिल्कुल यूएस ट्रुप्स ने और यूएस आर्म फोर्सेस ने वही चीज चाइनीज इक्विपमेंट के साथ किया वेनेजुएला में. तो भाई चाइना का माल खरीदना है तो भाई तुम्हारे ऊपर है, देख लो. देश की सुरक्षा तुम्हारा देश है, तुम्हारी सुरक्षा है, आगे तुम देख लो. That's all that we are saying. In fact, as that guy said, you know, there was just after Operation Sindhur, there was this meeting of defense contractors and defense innovations and innovators in Dubai. तो वहां पर एक पाकिस्तानी ने पूछा, हमारे एक जनरल साहब थे, मेजर जनरल साहब, he was explaining a lot about the BrahMos missile. So he asked, why can't you sell the BrahMos missile to us? He actually asked. A Pakistani general actually asked an Indian general, okay, why can't you sell the BrahMos missile to us? He had something very nice to say. He said, for you, delivery of the BrahMos is free. Please don't worry. we will deliver it to its destination free of cost. Absolutely. आप टेंशन मत लीजिए. Exactly. After that उसने दोबारा नहीं पूछा. Yes. मेरा ये कहना है कि भाई चाइनीज माल अगर खरीदोगे, ये करोगे तो यही हाल होगा सबका यही हाल होने वाला है. So I'm not kidding. And there's every possibility, if I were General Munir or Field Marshal Munir, I would be quaking in my boots, because you don't know what Trump is going to do next. He might just say, I am going to liberate Balochistan. You don't know. Trump might actually do that. But within rumblings within Pakistan, where Zardari says, to tell you the fact, we were all hiding in the bunkers. Yeah. But Balochistan, that government in exile of Balochistan has appealed to Trump. They have said कि जो आपने वेनेजुएला में करा है, प्लीज आके बलूचिस्तान में करिए. इन्होंने तो पूरे बलूचिस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं वो जाकर के इन्होंने बेच दिए चाइना को. एंड फील्ड मार्शल मुनीर and Shahbaz Sharif had tried to sell the same resources to President Trump. उनका ये रेयर अर्थ है, ये आपके लिए, वो याद है आपको, वो एक डब्बा लेकर के गए थे जिसमें अलग अलग किस्म के पत्थर थे. साहब ये आपके लिए, अरे वो तो तुम बेच चुके हो चाइना को. And Chinese army already there in Balochistan. तो सर guarding the assets. सर बिल्कुल They don't believe the Paki army. सर बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि बिल्डर हो क्या? ऐसे तो पहले बिल्डर किया करते थे, एक एक फ्लैट चार चार लोगों को बेच दिया करते थे. I think this Munir and Shahbaz Sharif are doing the same thing. They are selling the resources of Balochistan to both China and USA. और अगर आज हिंदुस्तान भी बिड करेगा, शायद उनको भी बेच देंगे, हमको भी बेच देंगे, तुम ही ले लो भाई. And number 3, why I say Field Marshal Munir should be quaking in his boots is because, irrespective of anything else, I don't know whether Mr. Trump is going to attack Colombia or he's going to attack Cuba or not, I don't know. But I do know that his eyes and the eyes of the strategic think tank of the USA are fixated on Iran. मानता हूं आज की तारीख में ईरान हम लोगों का दोस्त है, लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है, ईरान हैज ऑलवेज स्टूड बाय पाकिस्तान. ये याद रख लीजिए. अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है तो पाकिस्तान के लिए जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा. ये याद रख लो.
Field Marshal Munir and Shahbaz Sharif should be very, very careful. So maybe Shahbaz Sharif is not such a write-off after all. उन्होंने जो फील्ड मार्शल मुनीर को आगे कर दिया है ना कि भैया जब फांसी चढ़ने की बात आएगी तो भाई साहब इंचार्ज तो यही हैं, आप इन्हीं को ले जाओ. I think that's what's going to happen. Exactly what Nawaz Sharif did to Parvez Musharraf when Parvez Musharraf had to retire and run away. And prior to that, what Benazir Bhutto and Nawaz Sharif did to General Zia-ul Haq. General Zia-ul Haq's C-130 Hercules aircraft just blew up. You don't know when this is going to happen to You- Field Marshal Asif Munir. One never knows. Because they say every government change or it's like court martial or martial law. Court martial or martial Martial law law. or a hanging. Whatever comes the results of that. Whatever comes first. Yes, court martial or martial law. So, it's But gonna be- I'll tell you what, I'm quite happy at the export figures, which are fantastic. What Mr. Modi has done is really and truly lovely. The manner in which the Prime Minister Modi ji has been able to play all these guys in favor of India. क्योंकि जहाँ तक भारत का सवाल है भाई, हम तो अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. exactly. हमने कम कर दिया है, मानते हैं कम कर दिया है, लेकिन कम इसलिए क्या, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़रा कम हो गई. विंटर में तेल की जो खपत होती है ज़रा कम हो जाती है वैसे भी, तो थोड़ा सा कम किया है. और साथ में हमने ये भी कहा है ट्रंप साहब को कि साहब आप दे दीजिए ना, जिस कीमत पर हमें रशिया से मिल रहा है उस कीमत पर आप दे दीजिए. लैंडिंग कॉस्ट जो है, नॉट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ ओरिजिन, नॉट फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन, लैंडेड कॉस्ट. अगर लैंडेड कॉस्ट ऑयल की यूएसए से इट इज कंपेटिटिव with what we are getting from Russia, we are more than willing to buy it from you or anybody else that you designate. Or you allow us to buy Venezuelan oil. Fair deal. That's it. Give us a fair deal. We are more than welcome. और अगर आपको टैरिफ बढ़ाना है तो बढ़ा दो भाई, अपने को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदुस्तान जी चुका है इन सब चीज़ों से, इनसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों के ऊपर हम आ चुके हैं. जब हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर पोखरण 2 किया था, हम लोगों के खिलाफ सैंक्शन इन्होंने इम्पोज किए थे, एंड वी वर एबल टू लिव थ्रू दोज सैंक्शंस. सो इट इज़ नथिंग न्यू फॉर इंडिया. और अगर हिंदुस्तान पे अटैक करना है तो आ जाओ भाई. हो सकता है कि आपका कुछ बचे ही नहीं, ये भी याद रख लो. आपकी जो पूरी 7th फ्लीट है, इट मे बी ए मेमोरी, एंड वी डोंट नीड एनीबडी एल्स. बाय द वे, इंडिया एंड द इंडियन नेवी टुडे इज स्ट्रांग इनफ टू फेस ऑफ एनी नेवी एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन इंडियन वाटर्स. वी मे नॉट बी एबल टू अटैक यू, but we can certainly defend ourselves. Let's be very, very clear. There's a big difference. We may not be able to send our navy into New York Harbor, but if you try to come anywhere within the Indian Ocean, that is either the Arabian Sea or the Bay of Bengal, you got a thing coming. We are ready for it. You got a thing coming. And as Prime Minister Modi and Dr. Jaishankar and everybody else keeps saying, we regard the United States of America as a great friend, and may that friendship grow stronger. एक और चीज आपको बता दूं, दोबारा दोहरा दूं, there are 100 exports from India, 100 products from India, प्रदीप जी, बिल्कुल. which have zero tariff. ट्रंप साहब ने उनके जीरो टैरिफ कर दिए हैं. there are zero tariffs on 100 products from India. नासा को जब भी कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करना होता है, they contract ISRO, Indian Space Research Organization. उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन, वी हैव जस्ट साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन डील विद द यूएसए फॉर द नेक्स्ट 10 years, 10 साल के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स फाइन, वी लिव विद इट. ऐसी क्या बात है. And we'll live along with more difficulties to come as Trump has challenged us that you are making me unhappy. You Which make is me fine. happy. Which is I fine. mean, I don't know any president who talks like that. How can he be different from the country? Maybe he is missing his friend Jeffrey Epstein. Maybe only Epstein could make him happy. Anyway, that's just about it. And by the way, considering that December 19th was supposed to be the last day of Mr. Modi as Prime Minister here, that's what Prithviraj Chauhan said. That's what Mr. Sanjay Raut said. What happened? अरे December 19 तो आगे चला गया यार. आप जो जनवरी है 2026 में, हम लोग 6 तारीख है, क्या हुआ? आज भी क्रिप कर रहे थे कुछ कि the same Venezuela situation if it happens in India. I mean, it's foolish. He wants to be in the news somehow. You mean that's an aspirational statement? कहने का मतलब ये हुआ, वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो. अरे नहीं होगा साहब. पृथ्वीराज चौहान साहब, मैं हमेशा पृथ्वीराज चौहान साहब के बारे में यही सोचता था प्रदीप जी, कि वो एक बड़े मजे हुए, बड़े मेच्योर्ड किस्म के, बैलेंस किस्म के पॉलिटिशियन हैं.
लेकिन उनकी जो दिसंबर 19 वाली जेफरी एप्स्टीन वाली जो स्टेटमेंट है उसके बाद it's terrible. I mean, I'm really disappointed. Very disappointed. Prithviraj Chauhan was the worst chief minister we ever had. The worst. And now I think he's the worst Congress leader ever. And he's even worse than Digvijay Singh. In any event, that's just about it as far as we are concerned. Pradeep ji, कुछ कहना चाहेंगे आप in summation? When you click to the icon subscribe, when you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Right, from the entire team over here at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.